Hello students, good morning. So after chapter number 3, let's get ready for the revision of chapter number 4, that is the throne of the judgment, as you can see on the screen. Right? Here we talked about one king, his chair, one boy, and all about the treasure. Right? So let's start the chapter. Many years ago, the city of Ujjain was one of the most well-known cities in India. It was the capital city of King Vikramaditya, who ruled his kingdom wisely. Here, they are talking about the Ujjain city, which was the famous in India. Okay, and the Vikramaditya king was ruling over that. And Vikramaditya was a strong and brave king. He was known for his skill in judging people perfectly. He never made a mistake in a judgment or punished the wrong person. Here they are talking about the Vikramaditya king. He was that much clever that he every time made a correct decision. If two people will come to him, he will judge the correct one. He will find the wrong person and punish him. He never used to punish any right person. After he died, there were many kings who ruled over Ujjain. After he died, there were so many kings who ruled over that Ujjain city. However, his place and other buildings slowly became ruins. Shepherds often took their sheep and goats to graze there, but no one remembered or knew anything about the king Vikramaditya. Slowly what happened, that place ruined, मतलब destroy हो गई वो place. वो जो राजमहल था उनका वो गिर गया. फिर it was just like a jungle. So one boy, shepherd boy, was going there with his sheep and goats to graze there. घास खिलाने के लिए वहाँ पे लेके जाते थे वो. But no one remembered or knew anything about King Vikramaditya. No one was knowing anything about that king. One day, shepherd boy was sitting on a mound in a field. Two of his friends were fighting with each other. एक दिन क्या हुआ? Shepherd boy was sitting here on the mound. Two friends were fighting with each other. The shepherd boy called out their two friends and told him कि let me know the matter. I'll give you the correct solution. आप मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम हुई, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा एंड यू शुड स्टॉप फाइटिंग नाउ. देन दिस टू फ्रेंड ऑफ शेफर्ड, टू बॉयज वेंट टू दी बॉय, वहाँ पे जाते हैं एंड ही लिसन टू देयर कंप्लेंट्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. ये बॉय ने उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया. बोथ वर वेरी हैप्पी विद द सॉल्यूशन. और दोनों लोग सॉल्यूशन से क्या हो गए, दे वर बोथ हैप्पी. फ्रॉम दैट डे ऑन द बॉयज ऑलवेज वेंट फॉर हिम फॉर हेल्प. तब से कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो लोग शेफर्ड बॉय के पास जाते थे. शेफर्ड बॉय विल गिव सॉल्यूशन एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. द शेफर्ड बॉय सैट ऑन दी सेम माउंट एंड नेवर मेड अ मिस्टेक. ये माउंट पे बैठ के जब भी वो डिसीजन देते थे तब उसका डिसीजन ऑलवेज करेक्ट होता था. ऐसा क्यों हुआ होगा? लेट्स सी. Slowly what happened, people from other villages and towns got to know about the wise shepherd boy. They started bringing their problems to him and they went always satisfied. What they were doing, do you know? कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी, slowly each and every people from that town were coming towards the boy. Boy के पास आते थे, वो सॉल्यूशन लेके चले जाते थे एकदम हैप्पी होके. After some time, King Bhoj heard about the boy. He told his courtiers, the shepherd boy sits on the mound and solves the problems. I think King Vikramaditya's throne must be buried under that mound. That is why the boy doesn't make any mistakes. एक बार एक किंग था. किंग विक्रमादित्य तो मर चुके थे, राइट. उसके बाद एक किंग था. व्हाट वाज हिज नेम? किंग भोज. उन्होंने एक बार सुना कि ये माउंड के ऊपर, माउंड मतलब ये छोटा सा जो पत्थर आपको दिख रहा है, स्टोन, उसके ऊपर बैठ के ये बॉय अगर आंसर देता है करेक्ट, सबको सॉल्यूशन देता है, तो किंग भोज को ऐसा लगा कि इसके अंदर किंग विक्रमादित्य की जो चेयर है, थ्रोन है, वो अंदर बरीड की गई है. द नेक्स्ट डे द किंग भोज सेंड हिज मैन टू डिग अप द माउंट. दूसरे दिन किंग ने बोला उसके कोर्टियर्स को, दो लोग भेजे वहाँ पे, एंड क्या किया कि वो आप देखो उसमें अंदर क्या है. They dug ground and discovered the treasure, the beautiful marble throne. वो उसने जैसे ही वो पत्थर को हटाया एंड क्या मिला वहाँ से? ब्यूटीफुल मार्बल थ्रोन. मार्बल मतलब वाइट कलर की एक ब्यूटीफुल चेयर थी जिसको सिंहासन भी हम बोल सकते हैं. 32 stone angels with their wings spread out.
32 एंजल्स थी वहाँ पे जो चेयर के आसपास बैठी थी. कैरिड द थ्रोन ऑन देयर शोल्डर्स, अपने शोल्डर के ऊपर वो थ्रोन लेके जा रही है. ऐसी वाली 32 एंजल्स थी वहाँ पे. द वर्कमैन डग अप केयरफुली एंड कैरिड टू द किंग्स प्लेस. जो काम करने के लिए मैन आए थे उन्होंने क्या किया, एकदम केयरफुली वो चेयर लेके किंग के प्लेस पे गए. किंग भोज वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड. व्हाट अ ब्यूटीफुल थ्रोन. ऑफ कोर्स ऐसी कोई थ्रोन देखेगा तो वो एक्साइटेड हो जाएगा. सेम वे किंग भोज वॉज क्वाइट हैप्पी एंड ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल थ्रोन. आई शैल सिट ऑन इट पास जजमेंट एंड नेवर मेक अ मिस्टेक. ही थॉट हैप्पीली. फिर उसने बोला कि मैं भी अब इसके ऊपर बैठूंगा, मैं भी लोगों को सोल्यूशन दूंगा एंड मैं कोई मिस्टेक नहीं करूंगा. बिकॉज ये किसकी चेयर है, किंग विक्रमादित्य की. किंग भोज फास्टेड एंड प्रेड फॉर 3 days. 3 days तक उन्होंने फास्ट किया, गॉड को प्रेयर किया. ऑन द 4th day ही वॉज रेडी टू सिट ऑन द थ्रोन. When he touched it, one of the stone angels came alive and said, "O king, stop! Do you think you are worthy to sit on the king Vikramaditya's throne of judgment? Have you never wanted to rule over the kingdoms?" जैसे ही वो 2 days फास्ट करके चेयर के ऊपर बैठने की ट्राई करता है, कौन, किंग भोज, उतने में 32 स्टोन एंजल में से एक एंजल अलाइव होके, जिंदा होके बोलती है कि ओ किंग स्टॉप इट, मत बैठो वहाँ पे. आपको लगता है कि आप वहाँ पे बैठ पाओगे? आप अपने आप को उसके लायक समझते हो? किंग भोज थॉट फॉर अ वाइल एंड आंसर सैडली, नो आई एम नॉट वर्दी. किंग भोज को लगा कि नहीं, मैं नहीं बैठ सकता, मुझे नहीं लग रहा ऐसा. फास्ट एंड प्रे फॉर द अनदर 3 days, देन सिट. दिस एंजल फ्लू अवे. एंजल ने क्या बोला कि और 3 दिन के लिए आप फास्ट करो, प्रेयर करो, फिर आके बैठना. 90 days passed like the until the one angel was left. ऐसे करके 90 days चले गए. लास्ट में एक ही एंजल बची थी. The king thought this angel would allow him to sit on the throne, but the angel asked him, "O king, is your heart pure like the heart of the shepherd boy who was sitting on the mound?" लास्ट में एक बची थी एंजल, तो किंग भोज को लगा कि शायद मुझे ये अभी बैठने देगी. बट उसने क्या बोला, ओ किंग, इज़ योर हार्ट प्योर लाइक द हार्ट ऑफ शेफर्ड बॉय हु वॉज सिटिंग ऑन द माउंट. ये जो माउंट के ऊपर बॉय एक बैठता था, उसका जैसे हार्ट है वैसे ही आपका हार्ट प्योर है. अगेन द किंग वॉज थिंकिंग अबाउट इट एंड वॉट ही सेड. द किंग थॉट फॉर सम टाइम एंड आंसर ट्रूथफुली, नो इट्स नॉट. वो बोलता है नहीं, मेरा हार्ट इतना प्योर नहीं है. बिकॉज वो एक छोटा सा बच्चा था और ये बहुत ही बड़े किंग थे, तो उसको लगता है कि वो बच्चे का हार्ट शायद ज़्यादा प्योर होगा. द एंजल्स हर्ड द किंग्स रिप्लाई एंड फ्लू अवे कैरिंग द मार्बल थ्रोन ऑन हिज हेड. फिर ये आंसर सुन के ये एंजल ने क्या किया, वो अपने शोल्डर के ऊपर, अपने हेड के ऊपर ये जो थ्रोन है वो लेके उड़ गई, फ्लाई अवे हो गई. ओके, सो दिस वॉज द ओल्ड स्टोरी अबाउट द चैप्टर. नाउ वी आर सपोज टू लर्न द क्वेश्चन एंड आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. इवन यू कैन ओपन योर CW. आप लोगों ने CW में लिखी है, सो राइट नाउ यू शुड सीट विथ योर CW एंड यू कैन पे अटेंशन इन दैट, so that when you will read you will understand all the answers easily. Okay, question number 1, why was the city of Ujjain famous? What special skill did the ruler have? वो क्यों famous था Ujjain city? The city of Ujjain was famous because it was the capital city of King Vikramaditya. He was a strong and brave king. Vikramaditya was known for his skill in judging people perfectly. He never made a mistake in judgment or punished a wrong person. एक तो वो फेमस किसके लिए था, बिकॉज वहाँ पे किंग विक्रमादित्य थे और वो स्पेशल स्किल क्या था. अनदर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दिस. स्पेशल स्किल वॉज दैट ही नेवर मेड अ मिस्टेक इन जजिंग पीपल. क्वेश्चन नंबर 2, वॉट हैपन ऑन द डे द शेफर्ड बॉय सेट ऑन द माउंट. जब भी वो शेफर्ड बॉय है, शेफर्ड बॉय माउंट पे बैठता है, तब क्या होता था. The day the shepherd boy sat on the mount, 2 of his friends were fighting with each other. He asked them not to fight but tell him about their problem so that he could settle it. 2 friends झगड़ा कर रहे थे, तब उन्होंने बोला कि don't fight with each other, just come here and I'll give the solution. The 2 boys stopped fighting and went to him. He listened to their complaints and solved their problem. Both the boys were happy with the solution. जब माउंट पे बैठा था तब क्या हुआ था, 2 फ्रेंड्स झगड़ा कर रहे थे,
उन्होंने बोला कि झगड़ा मत कीजिए, जस्ट कम टू मी, आई विल गिव यू सॉल्यूशन. Then that shepherd boy gave solution and two boys were happy. Question number 3 is, why did the king Bhoj send his man to dig up the mound? किंग भोज ने वो माउंड डिगअप करने के लिए अपने मैन को क्यों भेजा था वहाँ पे? What did they find? कहाँ क्या मिला था उसमें से? King Bhoj heard about the shepherd boy and how he could solve the problems perfectly by sitting on the mound. King Bhoj thought that Vikramaditya's throne of the judgment must be buried under the mound. This is why he sent the man to dig up the mound. When they dig up the mound, they found the marble throne. एक तो वी आर हैविंग टू क्वेश्चंस टुगेदर, दे क्यों भेजा था? बिकॉज जब भी किंग भोज ने वो लड़के के बारे में सुना तब उसको क्या लगा कि दे मस्ट बी बरीड वन चेयर अंडर दैट माउंड. ओके, और उसमें से क्या मिला? उसमें से उनको मिला मार्बल का थ्रोन, एक ब्यूटीफुल चेयर. हाउ डिड द थ्रोन ऑफ किंग विक्रमादित्य लुक? कैसी दिख रही थी वो चेयर? द थ्रोन ऑफ किंग विक्रमादित्य वॉज वेरी ब्यूटीफुल. It was made of marble. 32 stone angels with their wings spread out carried the throne on their shoulders. 32 angels थी, वो अपने शोल्डर पे ये थ्रोन लेके जा रही थी. It was of white color and beautiful chair. Question number 5 is, what happened when the king Bhoj was about to sit on the throne? जैसे ही king Bhoj वो चेयर के ऊपर बैठना चाहते थे तब क्या होता था? The king Bhoj fasted and prayed for 3 days. On the 4th day, he was ready to sit on the throne. When he touched it, one of the stone angels came to life and asked him to stop. एक एंजल जिंदा हो जाती है 32 में से and बोलती है what? Asked him to stop. The angel then asked the king whether he was worthy to sit on Vikramaditya's throne of judgment. King Bhoj replied that he was not worthy. जिंदा होके क्या पूछती है? व्हाट शी इज़ आस्किंग, ही वॉज आस्किंग कि क्या आप रियल में वर्दी हो ये बैठने के लिए, आप बैठने के लायक हो? देन किंग भोज रिप्लाइड दैट नो, आई डोंट थिंक सो. क्वेश्चन नंबर 6 इज, वाई वॉज द किंग भोज अनेबल टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ जजमेंट एट द एंड? लास्ट में वो क्यों नहीं बैठ पाए? लास्ट वाली एंजल ने क्या पूछा था? हार्ट प्योर है कि नहीं, ऐसा कुछ पूछा था, राइट? लेट्स सी. King Bhoj could not sit on the throne in the end because his heart was not as pure as the shepherd boy who had sat on the mount, and therefore he was not worthy of the throne. Now the next question is, say how you know that. यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है. सपोज किंग विक्रमादित्य वॉज अ क्लेवर किंग. वो क्लेवर कैसे है, कैसे पता चलता है हमें? लेट्स राइट डाउन द रीज़न. King Vikramaditya was known for his skill in judging people perfectly. He never made a mistake in judgment or punished the wrong person. वो कभी भी wrong person को punishment नहीं देते थे. That's why he was a clever king, right? Number 2, the shepherd boy became famous. Why he became famous? Because he was giving correct solution. Is that? Soon people from other villages and towns got to know about the wise shepherd boy. They started going to the problem to him and went away satisfied. So we are supposed to find out lines from the chapter and we are supposed to prove that this is the related answer. King Bhoj wanted to be a wiser ruler. What a beautiful throne, I shall sit on it, pass judgment and never make a mistake, he thought happily. मैं भी ये चेयर पे बैठूंगा, मैं भी सबको जजमेंट दूंगा, मैं कभी मिस्टेक नहीं करूंगा. तो इसके ऊपर से हमें क्या व्हाट वी अंडरस्टूड दैट किंग भोज वांटेड टू बी अ वाइज रूलर. नंबर 4, द शेफर्ड बॉय वॉज इनोसेंट. कैसे पता चलता है कि वो इनोसेंट था? द एंजल आस्क्ड हिम, ओ किंग, इज योर हार्ट प्योर लाइक द हार्ट ऑफ द शेफर्ड बॉय हु सैट ऑन द माउंट? ओनली इफ इट इज यू विल बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन. ये लाइन से हमें पता चलता है कि शेफर्ड बॉय का हार्ट है वो इनोसेंट था. बिकॉज द एंजल वॉज आस्किंग द किंग कि आपका हार्ट भी ऐसा ब्यूटीफुल और इनोसेंट है. नंबर 5, those who were unworthy could not sit on the king Vikramaditya's throne. How can we come to know? After the king truthfully replied, the heart was not as pure as that shepherd boy, and therefore he was not worthy to sit on the throne. And the angels flew away carrying the marble throne on its head.
मतलब अगर आपका हार्ट प्योर नहीं है तो आप ये चेयर के ऊपर नहीं बैठ पाओगे, ऐसा बोल के एंजल है वो अपने हेड के ऊपर वो थ्रोन लेके चली गई। सो दैट उससे हमें समझ में आता है कि दोज हु वर अनवर्दी कुड नॉट सीट ऑन विक्रमादित्य's throne। ओके, सो एवरीबडी हैज़ टू रीड दिस चैप्टर अगेन। आपका 3rd या 4th टाइम रिविजन हो जाएगा एंड इट इज़ क्वाइट ईजियर एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स डन फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन।